Jai Hind, dear learners. Welcome back to your own channel Study Journey. So dear students, as you know, these classes have been started with the initiative of Shri Ram Public School, and I am taking your English grammar classes, in which we were presently on the topic of what? Yes, we are presently on the topic of vocabulary enrichment, and these classes of English grammar are being taken by your one and only Soumya ma'am, teacher at SRPS. So my dear student, in last class we started the session of vocabulary enrichment. In that we were on a new topic of synonyms. So let us quickly revise what we studied in the last class. So we studied the definition of synonym, what is the meaning of synonym, that they are the words which have the same meaning. Yes, right. So you have seen a very easy example like children and kids, and then present and give. So my dear student, I am trying to make the best for you, the most fun way of learning the English grammar, which is considered as the tough subject. Also, I am sure that you all are enjoying these classes of English grammar and learning the things along with me in the online session itself. So let us move further. In yesterday's session, we saw some of the important synonyms. They were from abandoned to the conscience. We learn its meaning with proper pronunciation as well as meaning in Hindi also. So I think that in yesterday's class itself, you might have learned most of those synonyms while we were in the session itself. Now moving forward, we are going to see further more synonyms which are used in day-to-day life, and we will not waste much time, just the talks. We will come to the important synonyms of today's session. Let's see them one by one. My dear student, here are your new list of synonyms. Let us learn it here itself in this online class. So the first word of today's session is despise. Despise synonym is hate. मतलब कि नफरत करना. सो जब भी आप हेट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके जगह आप उसका सिनोनिम डिस्पाइस भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वर्ड, सेकेंड सिनोनिम ऑफ टुडे सेशन. इट इज़ डिसग्रेस और इट्स सिनोनिम इज़ डिसऑनर. मतलब किसी को नीचा दिखाना, दैट इज़ किसी की ग्रेस को कम करना या किसी के ऑनर को कम करना. सो इट इज़ नोन एज डिसग्रेस और डिसऑनर. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड डेलीजेंट. डेलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है? इंडस्ट्रियस. मतलब कि जो बहुत मेहनती हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ श्री राम आर वेरी डेलीजेंट और इंडस्ट्रियस. मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, काम करने वाले लोग हैं. राइट. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड. इट इज़ din and its synonym is uproar. मतलब कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़ोर से कोई आवाज़ निकालना. ओके. Next, now let us do. You might have listened this do many a times. So its synonym is perform. Do मतलब कोई काम करना होता है, right? So its synonym is perform. Then their synonym, next synonym is eccentric. Its meaning is, its synonym is queer or strange. Okay? Eccentric, its synonym is queer or strange. इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो दूसरे से एकदम अलग है, विचित्र है, तो उसे हम क्या क्या कह सकते हैं? मीनिंग एक ही है, पर यहाँ आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं. फर्स्ट वन eccentric, then queer and then strange. Now I hope that you all are clear with these all words and synonyms. Now let's come to the next synonym. It is emancipate. Okay, its meaning is free. किसी को free कर देना. The words were made free. The words were emancipated from the cages. Okay. नेक्स्ट इज एंथुजियाज्म एंड इट इज़ पैशन. मतलब कि हम लोग लर्न कैसे करते हैं अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में? हम लोग लर्न करते हैं एंथुजियाज्म से, राइट. पैशन से, पूरे दिल लगा के लर्न करते हैं, पूरे एंजॉयमेंट के साथ, पूरे मेहनत के साथ लर्न करते हैं, राइट. देन नेक्स्ट सिनोनिम इज इनफ. मतलब कि हो गया, बस, सफिशिएंट. यू ऑल गेट बोर वाइल स्टडिंग दैट यू ऑल वांट टू से टू द टीचर दैट इनफ मैम, इनफ सर. सो दैट इज ओनली सफिशिएंट फॉर टुडे. नाउ नेक्स्ट सिनोनिम इज एनिमी. ये तो सबको पता होगा, दुश्मन. सो इट्स सिनोनिम इज फो. मतलब कि एनिमी के लिए सेम वर्ड हम क्या यूज़ कर सकते हैं? फो. Now next synonym is fast, that you all are generally in your test, and it is quick.
कि जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करना, राइट? सो यू ऑल आर वेरी क्विक इन योर टेस्ट एंड इवन एट लंच टाइम सो दैट यू कैन गेट more and more time to play, isn't it, dear students? Yes. Now let us see our next synonym of the day. It is false. False का मतलब क्या होता है? False को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? False को हम लोग untrue कहते हैं, जो सत्य नहीं है, right? Next synonym is foolish and its synonym is silly. ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ाना हो. So the word is foolish and its synonym is silly. Now fastidious, it means fussy. कि किसी काम को करने में एक्स्ट्रा ही परफेक्शन लाने की कोशिश करना और एक्स्ट्रा ही उसके बारे में पर्टिकुलर. नेक्स्ट वन इज जॉयटी. इट्स सिनोनिम इज हैप्पीनेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, खुशी में. देन नेक्स्ट सिनोनिम इज योर जेन्युइन, मतलब कि रियल, जो कि असलियत में हो. देन हॉटी. हॉटी मीन्स प्राउड. देन नेक्स्ट वर्ड इज हेट्रोजीनियस. इस सिनोनिम इज मिसलेनियस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और अलग अलग हो. देन आवर सिनोनिम इन दिस स्लाइड इज ह्यूमिलिटी, मतलब किसी काम को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही चुपचाप, क्लीन, क्लियर और अच्छे वे में कर देना, बिना हल्ला मचाए, बिना शोर मचाए. दैट इज नोन एज ह्यूमिलिटी एंड इट्स सिनोनिम इज मॉडेस्टी. नेक्स्ट सिनोनिम इज कॉन्फिडेंट. आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो मतलब कि श्योर होना किसी चीज़ के लिए, 100% कन्फर्म होना, रेडी होना. नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्ररी, मतलब कि अपोजिट. ओके. देन नेक्स्ट सिनोनिम इज कॉर्डियल, मतलब कि फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होना. वी आर वेरी कॉर्डियल टू आवर नेबर्स. हम लोग अपने नेबर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्रेंडली हैं. येस. नेक्स्ट सिनोनिम इज डैमेज, जिसका मतलब होता है हार्म या फिर लॉस. सिनोनिम इज डेकोरेट, किसी चीज़ को सजाना. द स्टूडेंट डेकोरेट द क्लासरूम और एडोन द क्लासरूम ऑन एवरी टीचर्स डे. देन डिसाइड, मतलब कि डिटरमाइन कर लेना. वी आर डिटरमाइन, वी हैव डिसाइडेड टू फेस द टुडेज टेस्ट. नेक्स्ट सिनोनिम इज desperate and its synonym is hopeless, मतलब कि इन द किसी भी चीज़ से आशा को खो देना. दैट इज desperate और hopeless. नेक्स्ट वर्ड इज desolate and its synonym is lonely, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अकेला होना. देन लकी एंड इट्स सिनोनिम इज फॉर्चुनेट, जो बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, फॉर्चुनेट होता है. वी आर लकी इनफ टू स्टडी इन सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन. वी आर फॉर्चुनेट इनफ. देन मेक एंड इट्स सिनोनिम इज क्रिएट, किसी चीज़ को बनाना. द गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, द गॉड हैज़ मेड अस. नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ टुडे सेशन इज मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट मतलब क्या होता है, ग्रैंड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, सुंदर. वी स्टडी इन द मैग्निफिशेंट स्कूल, राइट? नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज मैलिशियस, मतलब कि स्पाइटफुल, जिसके दिमाग में कोई गलत बात होती है उसे हम मैलिशियस या स्पाइटफुल कहते हैं. सिनोनिम इज मार्वलस. मार्वलस का मीनिंग क्या होता है, वंडरफुल, वेरी गुड, राइट? We all human beings are marvelous creature of the divine power. So you can see, like I told you all in the last class only, we are many time discussing the sentences also for you or your all clear understanding, right? Now let us move forward. I hope that you all are clear with this all synonyms. So the next synonym is mighty, powerful, right? The God is the mighty. गॉड जो है वो बहुत पावरफुल है. मिस्री, सॉरो, बहुत दुख के दिन होना. लाइक COVID-19 हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिस्री अमंग लाइफ्स ऑफ पीपल. देन मूव, मतलब आगे बढ़ना. एडवांस, द ट्रूप्स मूव्ड इनटू द गलवान वैली. एडवांस टू द गलवान वैली. टू विड्रॉ द चाइनीज सोल्जर्स अवे, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टिनेट, मतलब कि एडमेंट और स्टबर्न, बहुत ही ज़िद्दी होना. कभी कभी आप लोग हो जाते हैं ना ज़िद्दी, स्कूल में भी और पेरेंट्स के साथ भी, कि आपको चाहिए ही चाहिए. सो दैट इज़ ओनली द ऑब्स्टिनेट, एडमेंट एंड ऑल्सो नोन एज स्टबर्न. Here the last synonym of the slide is palatable and it is appetizing, मतलब कि जो खाने में बहुत ही अच्छा हो. That is palatable and appetizing. So I hope that you all are again clear with this set of synonyms
And now let's move to the last slide of the synonym of today's session, and after that we are done with our this session of synonym. Let us quickly see them also. So now the last session of synonyms are here, last set of synonyms are here. So the next synonym of today is high, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा lofty या फिर tall होना. The Statue of Unity is very lofty, बहुत ही लंबा चौड़ा है, right? Next is idea. Idea, notion of belief. Whenever you all are bored in the class, you search for an idea to move to the playground, right? So our next synonym is impair or damage कर देना. We should never impair with the desk and benches of the school. Next, incessant, and it is continuous, मतलब लगातार चलते जाना. The student walk incessant to the असेंबली ग्राउंड. जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यूस लाइन में असेंबली ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट, लेमेंट. लेमेंट मतलब मौन या फिर ग्रीव करना, किसी पे दुख जताना, किसी बात पे रोना. ओके, वी लेमेंट डैट वी आर नॉट एबल टू गो टू आवर स्कूल इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक, राइट. हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं कि हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से. नेक्स्ट वन इज लीनियंट. लीनियंट मतलब कि माइल्ड. द टीचर्स आर वेरी लीनियंट टू द लिटिल चिल्ड्रेन. बहुत ही लीनियंट होती हैं, माइल्ड होते हैं टीचर्स टू यू ऑल लिटिल चिल्ड्रेन. नेक्स्ट वन इज लाइवली. लाइवली मतलब कि लाइफ से भरा हुआ. दैट इज cheerful and active. The students are the liveliest thing in the school, most cheerful and most active being in the school, right? Next synonym is loyal. Loyal means devoted or faithful. किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा devoted या फिर faithful होना, ठीक है. We all are very much loyal, devoted or faithful to our own school. Next word is stop, and its synonym are block and or avert, right? रुक जाना. Stationary, and its synonym is still, मतलब कि रुका हुआ. The train was standing stationary or still on the platform. Then strong. Strong means firm and powerful. We all will remain firm, powerful or strong even in this worst situation of pandemic, right? स्टबर्न. स्टबर्न मतलब अभी हमने देखा है इसका क्या होता है, ज़िद्दी होना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज सिंपैथी, एंड इस सिनोनिम इज पिटी. किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा दया दिखाना, दैट इज सिंपैथी और पिटी. नेक्स्ट वर्ड इज थैंकफुल. थैंकफुल का सिनोनिम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? थैंकफुल का सिनोनिम होता है ग्रेटफुल. हम लोग होते हैं ना, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स. वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर टू आवर टीचर्स दैट दे आर इम्पार्टिंग यू ऑल एजुकेशन इन इवन इन दिस ग्रेट सिचुएशन. देन टफ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट होना. वी विल स्टैंड टफ टू मीट ऑल द अनफॉर्सीन सिचुएशंस. Then true. True means right and accurate. We must remain true to ourselves. We must remain right to ourselves. Ugly means repulsive, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, right? Then our last word, last synonym of today's session is वर्ब, एंड इट्स मीनिंग इज विगर. बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीफुल होना और करेजियस होना. इंडियन सोल्जर्स आर हाई ऑन देयर वर्ब. दिस मच इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन ऑफ सिनोनिम्स. सो वी आर एंडिंग आवर टुडेज सेशन हियर ओनली. स्टूडेंट, stay at your home, stay safe, and don't forget to like, subscribe and share your own channel Study Journey. Also comment down below that how much you like the video, and if you have any doubt then don't hesitate, and obviously you can comment in the comment box and I'll get your doubt resolved. Stay home, stay safe. Jai Hind.